but just for the sake of revision, I'm going to revise it for you. If we are trying to use a biconvex converging lens as a magnifier, we need to first of all determine its focal length. And most of the time, the focal length will be given in the question. For example, for this particular lens, I'm using a focal length of 50 centimeters. But here the problem is that 50 centimeter is too large to be represented on a paper. 50 centimeter is too large to be represented on a piece of paper. So first of all, I will determine a scale for a scale diagram. We have already done this in mathematics. We will remember that a scale needs to be suitable. For example, 1 centimeter to represent, let's say, 10 centimeters. So if I want to represent this 50 centimeter length by using this scale, 50 centimeter will be represented by a length of 5 centimeter. Hopefully everyone knows what I'm doing here. Yes, sir. If anyone does not know, please talk to me. I am using the ratio method to determine that if 10 centimeter in actuality is represented by a 1 centimeter length, then how much length would a 50 centimeter length be represented by? I am going to show you a process, even though it's very simple, but we will try to make it as simple as we can. 1 centimeter to represent actual length. This length is on paper and this length is in actual life. So this 50 centimeter was in actual life. So I would write this 50 underneath this 10, and we need to see how much length needs to be represented on paper. So I would give it a variable called x. Then we will cross multiply it. 10 times x is equals to 50, and from here, in order to calculate this x, 10 will get divided on the other side and x comes out to be 5 centimeter. So this process that I did here is called scaling. And for the next step, I would locate the center of the lens. Of course, here I am doing it by my experience, but otherwise you would have to measure the length and then half it. All right. In this diagram, you always have to take measurements by using a ruler. Locate the center of this lens, and then from this center measure a length of 5 centimeter, and then indicate a point. This point will be called the focal point. Then repeat the process on the other side of the lens. जितनी length आपने right side पे measure की है उतनी ही length left side पे measure करें. At this point you will indicate another f. Both these lengths should be equal, जो दोनों sides पर हमने indicate की है. Secondly, thirdly, actually, join all these points by a straight line. We call this line principal axis, and we are trying to use it as a magnifier. This means we are trying to make a magnified image of an object. So an object needs to be represented here as well. So this is one of the tricks from examination. एग्जाम में वो आपसे अक्सर पूछ सकता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को. This object can be placed anywhere on this principal axis, but if we are trying to use it as a magnifier, then this object has to be placed between this focal point and this lens. Always, if we are trying to use it as a magnifier is what? It is something, it's a lens that will always show us a larger image of an object. So इस ऑब्जेक्ट को हमेशा हमें इस फोकल पॉइंट और इस लेंस के बीच में कहीं पर रख देना है. देन वी हैव टू फॉलो द जनरल रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स. जो रूल्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 3 रूल्स होते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट रूल is the light from the top of the object will travel parallel to the principal axis, and after passing through the lens, this has to travel through the focal point. Then, secondly, another light from the top of the object will travel through the center of the lens and will not bend. We can see that both these lines are actually moving away from each other. They will never meet in front of the lens. So, whenever light rays are not meeting in front of the lens, we would always have to continue them backwards. I'm using yellow color for this.
एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एज इट इज पीछे की तरफ जानी चाहिए, और इसी तरह दूसरी लाइन को भी हमें पीछे एक्सटेंड करना है. बोथ दीज लाइट रेज दे अपीयर टू मीट एट. अब ये देखिए, मैंने ऊपर वाली जो लाइन बनाई थी वो इतनी ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाया था, तो आई विल एक्सटेंड इट अ लिटिल मोर. एंड देन both these light rays, they are appear to be meeting here. They are not actually meeting here. ये हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया है तो लाइट रेज पीछे मीट होती हुई नजर आ रही हैं. अदरवाइज लाइट रेज आर नॉट एक्चुअली गोइंग बैकवर्ड्स, लाइट रेज आर गोइंग इन द फॉरवर्ड्स डायरेक्शन. बट बिकॉज light rays were not meeting in the forwards direction, that is why I continued them in the backwards direction. So in real life we place our eye in the path of these light rays. जब हम यहाँ रखेंगे तो लेंस के थ्रू देखते हुए हमें इसी ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट पर एक बड़ा इमेज बना हुआ नजर आएगा. Ibrahim, just give me a minute, I'll take your question. So the image would be drawn like this. As the light rays were coming from the top of the object, so at this point the top of the image will be formed, and as the bottom of the object is with the principal axis, so the bottom of the image will also be formed with the principal axis. So this blue was the object and this brown is the image of the object. It is the magnified image of the object. Let's take Ibrahim's question. Yes, Ibrahim. सर ये जो बैकवर्ड रेज हैं अगर जी ये जी. पेज पे मीट ना करें पीछे जाके तो फिर All right. या uh, okay, let me answer this. It is not your responsibility that where the light rays meet. As long as you're following the rules correctly, you have taken the measurements correctly, wherever the light rays meet, it's not your concern. All right, it is not your concern. As long as you're taking the correct measurements, it's okay. There are some questions in past papers as well that the light rays may not be appear to be meeting in the space that is given, but you don't have to force the meeting of the light rays. आपने हमेशा rules follow करने हैं. मीट करें या ना करें, it depends on the measurements which the examiner has given. All right, Ibrahim, hopefully that answers your question. जी सर. Okay, now we have to try to determine whether this image is real or virtual, inverted or upright, magnified or diminished. These are only the possibilities that an image can be. इसके अलावा और कोई possibility नहीं हो सकती. मिरर के केस में lateral inversion भी आ जाती है, लेकिन lenses के केस में नहीं आती. Let's see. First of all, we need to check if this is real or virtual. तो मैं जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए रिकॉल कर देता हूँ. Real images are formed on a screen where light rays actually meet. अब यहाँ पे तो लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करना पड़ा था, इसीलिए ये इमेज रियल नहीं है. रियल के बारे में एक बात और लिख देता हूँ. इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. ये एक स्क्रीन पर बनाए जाते हैं, जबकि मैग्नीफायर का जो इमेज हमें यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है ये किसी स्क्रीन पर नहीं बनेगा. दिस मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक ये ऑरेंज कलर की स्क्रीन रख भी दूं इस तरीके से, तो इस स्क्रीन पर कोई इमेज बनता हुआ नजर नहीं आएगा, बिकॉज ये येलो लाइट रेज तो असल में है ही नहीं. इमेज तो वहां बनता है जहां लाइट रेज किसी सरफेस पर फॉल करती हैं स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ पर तो लाइट रेज पीछे एक्सटेंड की गई हैं, यहाँ पर तो इमेज नहीं बनेगा. इमेज अगर बनता है स्क्रीन पर तो वो रियल इमेज कहलाता है. वर्चुअल इमेजेस कभी भी स्क्रीन पर नहीं बन सकते. सो आई एम गोइंग टू डिफाइन हियर व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज. Virtual image: an image formed by the extension of light rays in the opposite directions. These images cannot be formed on a screen. Only the observer will see them to be there.
यानी कि जो मैंने यहाँ आय बनाकर दिखाई है आपको, यही ऑब्जेक्ट आपको इस जगह पर बड़ा होकर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये आप किसी और को नहीं दिखा सकते। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। आपने वो देखा होगा पुराने जमाने में जो वो पिक्चर्स होती थी, यानी जो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पिक्चर निकाल के वो एल्बम्स में लगाते थे, दैट वाज अ रियल इमेज, क्योंकि वो जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो एक तरह की स्क्रीन होती है और उसके ऊपर वो इमेज बन जाता है। अब वो आप किसी को भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैग्नीफायर जो बंदा यूज कर रहा है सिर्फ उसे ही नजर आता है। मेरी बात समझ रहे हैं होपफुली? ऑलराइट, अब सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया ये रियल है या वर्चुअल है। नेक्स्ट हमें ये डिसाइड करना है वेदर इट इज अपराइट और मैग्नीफाइड। अपराइट, an image which is in the same orientation as the object, an image which is in the same orientation as the object, that means अगर एक इमेज एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बना है तो हम इसको अपराइट कहेंगे। बट इफ एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है लेकिन कहीं पर किसी सिचुएशन में इमेज नीचे बन रहा है तो वो फिर इन्वर्टेड इमेजेस कहलाते हैं। ठीक है, मेक श्योर अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे होता, एक मिनट, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे होता और इमेज भी ऐसे बन रहा होता तब भी ये अपराइट ही कहलाते, बिकॉज इमेज का की जो ओरिएंटेशन है इट इज डिपेंडेंट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट भी उल्टा है इमेज भी उल्टा है, दिस इंप्लाइज ये अपराइट ही है। इसका ये मतलब नहीं अगर ये आपको उल्टा नजर आ रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि ये इन्वर्टेड है। इन्वर्जन जो होती है या अपराइट किसी इमेज का जो होना है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट कैसी है। अगर ऑब्जेक्ट ही उल्टा पड़ा हुआ है तो इमेज भी उल्टा बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अपराइट है, ये इन्वर्टेड नहीं है। बट इफ इट वाज अ सिचुएशन लाइक दिस, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर होता इमेज नीचे होता, तो फिर ये इन्वर्जन कहलाता, इन्वर्टेड कहलाता। होपफुली मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही हैं। Next, we have to Yes, sir. see if it is magnified or diminished. जी, next question is whether it is magnified or diminished. ये मुझे बताएंगे, ठहर जाएं ठहर जाएं ठहर जाएं, ये मुझे बताएंगे। Let's see, Olia, can you tell me? Sir, magnified. How do you know that? How will you judge it? Sir, हम हाँ, शाबाश। बड़ी कॉमन सी, बड़ी सिंपल सी बात है, कैसे पता लगेगा? कन्वर्जिंग लेंस एक ही पॉइंट पे सारी लाइट को इकट्ठा कर देता है। बात तो दुरुस्त है, लेकिन मैग्निफिकेशन आप कैसे जज करेंगे? आपको यहां पर कैसे पता चल रहा है कि ये मैग्निफाइड है? शाबाश, कोई बात नहीं कोई बात नहीं जी, बिल्कुल इसका साइज देख के पता चल रहा है। साइज देख लें, एक इस इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है तो ये मैग्निफाइड है। सही है? ये है ना? यस सर, यस सर। ऑलराइट, सही। होपफुली मेरी बातें अब आपको कुछ समझ आ रही हैं। लेट्स ट्राई अनदर एप्लीकेशन। अब हम एक और एप्लीकेशन ट्राई करते हैं लेंसेज की ही। ऑलराइट, ये मुझे बताएंगे दाऊद, मोहम्मद दाऊद। बेटा मुझे बताएं ये जो लेंस मैंने बनाया है ये कौन सी टाइप का है? इज इट अ कन्वर्जिंग लेंस और अ डाइवर्जिंग लेंस? सर ये कन्वर्जिंग लेंस है। सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। कन्वर्जिंग लेंस है। बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ऑलराइट, अच्छा अब मुझे बताएंगे अनस इरफान। अनस, ये जो मैंने ऑरेंज हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सेस। वेरी गुड वेरी गुड, ओके। ठीक है जी, अब ये मुझे बताएंगे अली शयान। अली, ये जो मैंने दो एफ इंडिकेट किए हैं इन एफ को क्या कहते हैं? फोकल पॉइंट।
इन एफ्स को कहते हैं फोकल पॉइंट। ऑलराइट, मेरा अगला क्वेश्चन है हमजा से। हमजा मुझे बताएं लेंस से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है हम इसको क्या कहेंगे? सर इस डिस्टेंस को शाबाश। सर पता नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। फोकल लेंथ। अच्छा मैंने जिससे पूछना था उससे पूछना था, मेरी मर्जी थी। चलो ये जो मैंने अभी यहाँ पर ये पर्पल या पता नहीं कौन सा कलर है जो मैं यूज कर रहा हूँ, बहरहाल है बड़ा फैंसी। अच्छा ये वाले जो एरो मैंने इंडिकेट किया है इस लेंथ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। हमजा अब भूलना नहीं है, ठीक है सर। ठीक है, अब भूलना नहीं है। अभी जितना ये एफ है इस साइड पर उतना ही एफ दूसरी साइड पर भी है। आप देख सकते हैं मेरी मेजरमेंट्स कितनी एक्यूरेट है। मैंने अभी अंदाजे से बनाया, कोई मेजरमेंट नहीं यूज की। ऑलराइट, अच्छा अब मैं एक काम थोड़ा सा ऐसा वाला करने लगा हूँ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी वो काम हमने पहले नहीं किया। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस मेजर किया उतना ही डिस्टेंस मैं इस एफ से आगे और मेजर कर रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ 2f। और जितना यहाँ तक डिस्टेंस था उससे ही आगे मैं एक और डिस्टेंस मेजर करके इसको कह देता हूँ 2f। इस 2f का मतलब है कि जितनी एक फोकल लेंथ थी उसके ट्वाइस मैंने डिस्टेंस इंडिकेट किया है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस फोकल लेंथ वाज 5 सेंटीमीटर, देन इस फोकल लेंथ से 5 सेंटीमीटर आगे और मेजरमेंट ली है मैंने। क्यों किया है मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। अगर इस साइड पर भी ये 5 सेंटीमीटर थी तो उतना ही डिस्टेंस मैंने इससे आगे और मेजर किया और इंडिकेट कर दिया 2f। दिस 2f इज नथिंग टेक्निकल, इट इज जस्ट अ पॉइंट टू इंडिकेट अ डिस्टेंस विच इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। यानी ये कोई नई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो कि फोकल लेंथ से ट्वाइस डिस्टेंस पर मौजूद है। ठीक है, ये डायग्राम्स के अंदर यूज करने को यूज करना पड़ जाता है, लेकिन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी डिस्कशन की नहीं है। आई एम प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट, अच्छा उल्टा हो गया, एक मिनट। आई एम प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट वेल बियॉन्ड 2f। दिस इंडिकेट्स दैट ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेंथ से बहुत ज्यादा दूर मौजूद है। आपको ये बात मालूम होगी कि जब हम किसी कैमरे से पिक्चर लेते हैं तो वो हमें दूर से भी लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज की पिक्चर लेने के लिए हमेशा उसके करीब जाना पड़ता है। सो हियर आई एम ट्राइंग टू डिस्कस हाउ अ कैमरा विल वर्क। कैमरा जब एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेता है जो कि बहुत दूर पड़ा हुआ है, वही सिचुएशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। गौर से देखिएगा। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन है अवैस अमजद से। अवैस, मैं अब इसकी रे डायग्राम बनाना चाहता हूं तो सबसे पहला रूल क्या होता है? यस सर। मैं इसकी रे सर डायग्राम पहले जो यस सर। मैं इसकी रे सर डायग्राम जो इसके ऊपर से चलो बोलो। सर उसके ऊपर से जो लाइट पास करेगी यहाँ सबसे पहले उसकी हम ना पैरेलल लाइन लगा देंगे ये सेंटर को, तो लेंस तक पहली की। बात तो यह है कि ना लाइट उसके ऊपर से पास नहीं कर रही, लाइट उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से आ रही है। और अब बोले यस सर। बोले बोले शाबाश। यस सर, यहाँ से स्ट्रेट पैरेलल लाइन यहाँ पे लेंस तक जाएगी। लेंस तक चली गई। अच्छा अब उसके बाद सर ये फोकल पॉइंट से क्रॉस करेगी। वेरी गुड, उसके बाद ये फोकल पॉइंट से पास करेगी, कोई फर्क नहीं आएगा इसके अंदर। यस ठीक है, ऑलराइट, यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट रूल मुझे बताएंगे शहीर। शहीर, यस शहीर, सेकंड रूल। इज शहीर हसन देयर? Okay, maybe he is sleeping or having his breakfast. Okay, let's ask Ali Tahseen. Yes, Ali? Okay, looks like Ali is not there as well. Anyone who could tell me the second rule? Anyone? ये सर बताऊं? हाँ बता दो। सर सेकंड लाइट जो है वो टॉप से आएगी और एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस और लेंस जहाँ पर मीट कर रहे हैं उस पॉइंट से होके पैरेलल चली जाएगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। शाबाश, वेरी गुड। लेकिन
पैरेलल नहीं जाएगी, ये नहीं कहना चाहिए पैरेलल जाएगी क्योंकि ये पैरेलल नहीं है ना, ये स्ट्रेट पास कर रही है बट इट इज नॉट पैरेलल टू एनीथिंग। अभी तक ठीक है? Yes, sir, ऑलराइट, अच्छा अब अगला रूल हम पूछते हैं जी इब्राहिम से, बिकॉज ही रेज्ड हिज हैंड टू टेल मी द सेकंड रूल एंड आई कुडंट एक्नॉलेज इट। इब्राहिम थर्ड रूल आप मुझे बता दें प्लीज। यस सर थर्ड रे पहले फर्स्ट फोकल पॉइंट से पास करके तो फिर Very पैरेलल good. हो जाएगी आगे जाके। वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज द थर्ड लाइट रे और उसके बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी जी, कुछ इस तरीके से। बहुत अच्छी बात है। अब हम ये नोटिस कर सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज आर मीटिंग। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट हमने लेंस से बहुत दूर रखा हुआ था, अब उसका जो इमेज है दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। अब क्योंकि लाइट रेज ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से आ रही थी, जी मुनीब कुछ कहना चाहते हैं? जी मुनीब बताइए। सर जिस पॉइंट पे सारी लाइट रेज मीट करेंगे उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? जी उस पॉइंट को हम कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पर, बिकॉज हमें शायद ये कंफ्यूजन हो रही है कि इसको फोकल पॉइंट कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फोकल पॉइंट हमेशा वहां बनता है जहां पर पैरेलल लाइट रेज मीट करें। ये जो तीन लाइट रेज हमने यहाँ से ली है ये पैरेलल नहीं थी, दैट इज व्हाई वेयर दे आर मीटिंग दिस विल नॉट बी कॉल्ड अ फोकल पॉइंट, दिस विल बी कॉल्ड एन इमेज। इस पॉइंट के ऊपर इमेज क्रिएट होता है। ऑलराइट, लेट्स सी। ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से आ रही थी लाइट रे, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट इमेज का टॉप मोस्ट पॉइंट बनना चाहिए, लेकिन चूंकि आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट कर रही थी, so this implies that my image is going to be inverted। इससे हमें ये बात मालूम होती है कि जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। दिस मीन्स हमारा इमेज इन्वर्टेड होना चाहिए। नाउ लेट्स सी, अब इसकी प्रॉपर्टीज डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। आई एम सॉरी थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू स्पीक वेरी क्विकली। वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन वेदर इट इज रियल और वर्चुअल। जी शेर अली जल्दी से बता दो, रियल है कि वर्चुअल है? सर इमेज के दूसरे वाला, ये वाला जो आई मैंने इमेज बनाया है, ये वाला, ये रियल होगा कि सर ये तो वर्चुअल होगा? वर्चुअल होगा ना? नहीं, वर्चुअल तब होता है वर्चुअल जब, होगा। नहीं वर्चुअल तब होता है जब लाइट को पीछे एक्सटेंड करना पड़े, लेकिन यहाँ तो लाइट रेज असल में मीट कर रही हैं। जब असल में मीट करती हैं तो रियल इमेज बनता है। सो दिस इज एक्चुअली अ रियल इमेज। ऑलराइट, सेकेंडली दिस इज इन्वर्टेड और अपराइट। ये मुझे अली तहसीन बता देंगे, इन्वर्टेड और अपराइट। अली जल्दी से बता दो। अली सर ओके, उसका माइक नहीं चल रहा, उसने मैच चैट में भी किया था शायद, अच्छा, उसका फिर माइक नहीं चल रहा। तो मैसेज करके मुझे बता दो अली। ये सुन लेते हैं इब्राहिम से। इब्राहिम सर इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड है, वेरी गुड। अच्छा अगली तीसरी इसकी प्रॉपर्टी हम पूछ लेते हैं सुभान से। जी सुभान, जी सर। आप मुझे बता देंगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, ये मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? सर डिमिनिश। आपको कैसे पता चला? जी जी, चलो ओलिया से सर ये पूछ लेते रियल हैं। इमेज है। हाँ जी ये रियल इमेज है, वो तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया ना। ओलिया से पूछ लेते हैं। सर ओलिया, फर्स्ट एरो जो है जरा बड़ा है और दूसरा वाला जो है वो हाँ छोटा एरो है। शाबाश, वेरी गुड। ये जो दूसरा एरो हमने बनाया है ये इमेज है और इसका साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड दिस इमेज, दिस इज अ डिमिनिश्ड इमेज। सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज दैट यू नीड टू डिटरमिन। सवाल में पूछा जाता है बार बार, तो इसीलिए हमें इन प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने का तरीका पता होना चाहिए। जहां लाइट रेज असल में मीट कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर है, किसी लाइट रे को भी मुझे पीछे एक्सटेंड नहीं करना पड़ा, लाइट रेज सारी इधर असल में मीट कर रही हैं, दैट इज व्हाई दिस इज अ रियल इमेज। दूसरी बात, the object was lying in the upwards portion in at the top of the principal axis and the image was formed at the bottom of the principal axis, so this is an inverted image. And thirdly, the size of the image was smaller than the size of the object, that is why this is a diminished image. So this topic is actually how
use of converging lens as इन कैमरा, एक कैमरा के अंदर कन्वर्जिंग लेंस का यूज इस तरह किया जाता है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं कि एक 6 फुट का बंदा होता है, उस 6 फुट की बंदे की जब तस्वीर खींची जाती है तो वो एक छोटी सी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर आ जाती है। क्या वो 6 फुट का बंदा एक छोटे से कैमरे में उसका इमेज बनता अगर वो डिमिनिश ना होता? तो नहीं बन सकता था और ना। उसके लिए तो हम लोग को ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। वो जिधर भी जाना पड़ेगा, दैट इज कैमरा सही होगा। अच्छा चले ठीक है। Time is short. If you still have any questions, you could send them to me and I'll answer them. Inshallah, I will post this video. Please do revise it and watch it. Thank you very much. That's all for today. Allah. Love it.